विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में हूं मैं और आज यहां पर उत्साह यानी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ मिलकर एक 10 दिवसीय फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये फेस्टिवल आज यानी 10 मार्च से 20 मार्च तक यहाँ पर चलेगा और इसमें 3 दिन की जो है वो पेंटिंग वर्कशॉप होगी। आपको बताते चले इसका नाम डुगर दर्पण रखा गया है और आज यहाँ वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। क्या कुछ है इस फंक्शन में, आइए दिखाते हैं। क्या कहेंगे आज आपका ये इनॉग्रेशन? सर्वप्रथम मैं सतनाम जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और इतने कम समय में लग रहा है कि ये क्लब कई सालों से काम कर रहा है और इस क्लब के माध्यम से मुझे लगता है कि जो ये परिकल्पना है कि टीचिंग क्लासरूम तक सीमित है, वह परिकल्पना को हम तोड़ रहे हैं और यह भी शिक्षा का उतना ही सशक्त माध्यम है। इसी को चरितार्थ करने के लिए यह क्लब बना है। उत्साह is one such platform where these dreams will turn into a reality. It's a glad welcome we bring to you this afternoon, filled with desires, hopes we share all. A scintillating afternoon to all the dignitaries, professors, students, and all the worthy guests. It gives me immense pleasure to welcome you all to the inaugural function of Dugar Darpan, a 10-day multi-art festival organized by Utsaah, the club's University of Jammu in collaboration with Regional Center of Indira Gandhi National Center for Arts, commencing from 10th of March till 20th of March. Let me give you a brief overview of Utsaah and Dugar Darpan. It was Professor Umesh Rai, Vice Chancellor, University of Jammu, who conceptualized the idea of formation of 12 clubs in accordance with the vision of NEP 2020. Under his visionary guidance, the clubs intend to provide a platform to the students outside the structured classroom to give wings to their creativity, leadership qualities, community participation, and conservation of environment. The newly established clubs in the university have been given an umbrella term, Utsaah, after holding a naming contest in which students, scholars, faculty members, and non-teaching staff participated. The theme of this particular multi-art festival is Dugar Darpan. In this 10-day festival, paintings, photographs, artifacts, karigiri related to Dogra culture and heritage shall be displayed in the form of an exhibition on March 20th. A village Sadagram shall also be set up to depict the rural life and cuisines of Jammu region. Dogri dances, Gadi dance, documentary films and theatrical performances on the life of Dogra heroes will be the highlight of this cultural and heritage bonanza. In order to sensitize the students and to prepare them for the festival, several workshops and interactive sessions were held, starting from 27th of February. Various lectures and interactions with eminent professors and professionals such as Ravinder Kaul, a theatre personality, Mr. Bajinder Jha, a senior journalist, Dr. Asad Ahmad Rahmani, a renowned conservationist, were held to impart knowledge to the students pertaining their interest. सर थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे एक दिन के लिए, फिर आप आगे आ जाएंगे। सर थोड़ा This logo has been prepared by Mr. Rakesh. सर इस तरफ And that he had prepared at least 40 logos and we had been rejecting all of them. It takes 4 hours to create one logo. And फोटोज हो गए, छोड़ने वाला काम कर। वीडियो मोड पे रखना है। ठीक है, 1 2 3। टीचर इम्पोज करने वाले भूमिका में आ गया, वो गाइड करने वाले, मेंटरिंग करने वाले भूमिका में नहीं आया। महर्षि अरविंद को देखें तो उन्होंने कहा है कि द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन
true education is that nothing can be taught. So the job of the teacher is mentoring the student. हम सिलेबस में बांध करके रख दिए हैं। दास साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा, और नीलू जी भी यहाँ बैठी हुई हैं, पता नहीं कमेटी बनी कि नहीं बनी, मुझे नहीं पता, नीरज उसको कहाँ फाइल भटकाया हुआ है। ये एक तय हुआ था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम क्रेडिट देंगे। अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है या किसी प्रोफेशन में है, वो सिक्योरिटी फोर्स में है, पुलिस सर्विसेज में है, ब्यूरोक्रेसी में है, तो उसकी वो जो लर्निंग है, अगर वो जम्मू यूनिवर्सिटी से अपना कोई डिग्री लेना चाहता है तो दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम क्रेडिट देंगे सब। एंड उसका क्या फार्मूला होगा, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी और द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। वो कहे हुए मुझे रिमाइंड करते हुए 6 महीना हो गया। नीरज अगर नहीं चाहता है तो आगे नहीं बढ़ता है। चलिए ठीक है, तो वो एकेडमिक काउंसिल में डॉक्टर साहब हम लोगों को डेलिब्रेट करना है, और कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए या ज्यादा दिया जाना चाहिए जितना कि हम क्लासरूम टीचिंग में महत्व देते हैं। और वेल रिपोर्टेड है कि what you learn through the blackboard teaching not more than 7 to 8%. You learn yourself. So job of the teacher is to create the interest of the students. And education आपका तब तक holistic education नहीं होगा, वो इंटीग्रल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का नहीं होगा अगर हम स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से उसको नहीं जोड़ते हैं। उसको पेशेंस, परसिवरेंस, सिंसियरिटी, टॉलरेंस, ये सारी चीजें उससे निकल के आती हैं जो ये क्लब करने जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि सिर्फ जॉय नहीं, ये मेडिटेशन भी है। जब आप पेंटिंग करते हैं, जब आप डांस करते हैं, जब आप म्यूजिक करते हैं, हर एक्टिविटी, अब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको आप करते हैं तो दैट्स मेडिटेशन आल्सो। और मैं एक आपसे एक घटना शेयर करता हूं। प्रोफेसर दिनेश सिंह अभी हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जब वो वाइस चांसलर थे तो उन्होंने कहा कि गांधी फाउंडेशन में चरखा रखवा दो। मैं डायरेक्टर साउथ कैंपस उनके साथ था, तो उन्होंने कहा चरखा रखवा दो और बच्चे चरखा काटेंगे जो भी काटना चाहें। मैं इग्नोर किया जैसे नीरज करता है यार। फिर महीना 1.5 महीना बाद उन्होंने पूछा कि चरखे का क्या हुआ। बोले कि मैं कहा ना कि चरखा रखवा दो, तो वाइस चांसलर का आदेश था, चरखे की व्यवस्था करके हमने रखवा दी। करीब अक्टूबर 7-8 महीने बाद अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर को बोले कि हम गांधी आश्रम, गांधी फाउंडेशन पे चलेंगे। वहां पर बच्चों का एक्सपीरियंस पूछते रहे। वो 2 बच्चे ऐसे मिले, एक ने कहा मेरा माइग्रेन लेवल 3 था, वो घट करके लेवल 1 हो गया, और एक ने कहा मैं डिप्रेशन में थी, लड़की थी, मेरा डिप्रेशन से मैं बाहर आ गई हूं। ये है चरखे का जो है इंपैक्ट, दैट्स अ ट्रू मेडिटेशन। लेकिन वह तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हाथों का प्रयोग नहीं होगा। सो रियल एजुकेशन इज थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और ये क्लब मुझे लगता है कि होलिस्टिक एजुकेशन को जम्मू यूनिवर्सिटी में एक अच्छा मॉडल खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए मैं चेयरपर्सन और क्लब के सारे कोऑर्डिनेटर को जितनी प्रशंसा करूं कम है, और आप चाहूंगा कि आप लोग भी जो है गर्मजोशी से तालियों से इनके स्वागत करें। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि 1 महीने में मुझे नहीं लगता है किसी यूनिवर्सिटी में कोई एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, क्लब बनाया गया हो, वो इतने बड़े लेवल पर अपना फंक्शन करने जा रहा हो।
ये भूतो न भविष्यति है। इसलिए जो है मैं क्लब के लोगों को फिर से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो भी संभव सहयोग होगा पूरा हम करने का प्रयास करते रहेंगे। इसमें सर जैसा आप कह रहे थे, क्लब के साथ जुड़ने के लिए आप तो ट्रांसलेशन क्लब सतनाम जी ने आपको बांध दिया, इन्होंने बुक कर लिया, लेकिन सतनाम जी ने बांधा है, लेकिन जब बेसिक प्लेज वी हैव टेकन, यूनिवर्सिटी का जो प्लेज फाउंडेशन डे पर हमने लिया है, डिसॉल्विंग बाउंड्रीज, इवॉल्विंग एजुकेशन। So we have to dissolve that boundary, and it's not that boundary for evolving education, dissolving boundaries for evolving relationship also. So if you have to evolve your relationship through different clubs, this is the best platform to evolve your relationship also, in addition to education. Thank you.